So we have discussed about tides. So what we have discussed about tides? Okay, so these tides is one of the movement in ocean. ठीक है, our heading was ocean circulation. यही heading था हमारा. And ocean water circulates in 3 manners. ठीक है, there are 3 types of movements in ocean water. First is the waves, then second tides, and third are the ocean currents. ठीक है, so waves we have discussed. Waves rise and fall of ocean water on surface. The surface पे rise and fall होता है. Tides, they are the rise and fall of water in the water of ocean. Ocean water के level में जो rise and fall होता है. ठीक है, so these tides are high tide also and low tide. There are twice in a day. दिन में एक बार high tide होता है and once this is low tide. ठीक है, तो there are twice in a day. Twice in a day there is rise and fall in ocean water. Ocean water में rise and fall होता है. So these diagrams, you know, need to draw these diagrams. ठीक है, just for understanding you can draw. So when the highest tide, when there is highest tide, the position of highest tide, it is due to the gravitational force of sun and moon. So on which moon day the gravitational force is more and there is high tide? Yes, and full moon and new moon. ठीक है, full moon, when full moon is visible to us, new moon when no moon is visible to us. ठीक है, so both the conditions. In one condition moon is in between the sun and earth. ठीक है, on full moon condition moon is earth is in between the sun and moon. ठीक है, earth in between होती है जब न्यू मून होता है. बिकॉज अब जैसे यहाँ पे सन है, ठीक है, इन बिटवीन अगर मून आ गया तो ये मून का पार्ट हमें विजिबल नहीं होगा बिकॉज इस मून के पार्ट पे हमें सनलाइट नहीं पड़ रही, तो ये मून का पार्ट विजिबल नहीं होगा. तो जब मून इस साइड होता है तो देन फुल मून इज विजिबल टू अस. तो इन दोनों कंडीशंस में क्या होता है, हाई टाइड होता है बिकॉज मून भी अट्रैक्ट करता है वाटर को, सन भी अट्रैक्ट करता है. और जब यहाँ पे मून होगा देन देयर विल बी लो टाइड. यहाँ पे लो टाइड की पोजीशन होगी. हियर इट विल बी हाई टाइड पोजीशन. यहाँ पे कौन सी पोजीशन होगी, हाई टाइड की. ठीक है, एंड यू हैव टू रिमेंबर इन दिस टाइड्स कि स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्सेस exerted by moon and sun. ठीक है, and during the full moon and new moon days sun, moon, earth, they are in same position and that is why the tides are high, gravitational force is high. And when the sun the moon is in its first quarter or last quarter, ठीक है, then the gravitational force is in opposite directions, so then there is neap tide. Neap means low tide. ठीक है, and then what are the uses of tides? What are the uses of tides? Yes, what are the uses of tides? हाँ जी बेटा, anyone use of tide? हाँ जी, हाँ जी. They tides help in navigation. Navigation means when ships they sail in the ocean and they come back to shore. ठीक है, so then these tides are also helpful to them. And when there is high tide, the ships can arrive at the shore very easily. ठीक है, because when the high tide is there, then ocean water covers more part on ocean seashore. ठीक है, when there is low tide then ocean water covers less part on the seashore. ठीक है, ये हमने किया था ना कि यहाँ पे अगर ओशियन वाटर है, यहाँ पे शोर है, तो हाई टाइड में पानी ज्यादा आगे तक आएगा, लो टाइड में पानी यहीं तक रह जाएगा. ठीक है, सो देयर इज हाई टाइड
तो शिप्स ज्यादा आगे तक आएंगे, हाई टाइड में शिप्स ज्यादा आगे तक आ सकते हैं कि अपने जहां पे हमने उनको लोकेट करना है तो इजीली वहां पे पहुंच सकते हैं. सो देन कम्स द नेक्स्ट ओशियन सर्कुलेशन, ओशियन करंट्स. कि दीज ओशियंस दे आर इन कॉन्टिन्यूसली, कि ओशन वाटर जो है ये कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है. ठीक है, हमने डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, अब ये भी डायग्राम आपने बनाना नहीं है वर्ल्ड का, ठीक है, ये भी सिर्फ समझ लो डायग्राम. यहाँ पे डिफरेंट एरोज दिख रहे हैं आपको, ठीक है, जो नियर द इक्वेटर, ये समझ लो कि देयर आर नियर द इक्वेटर देयर आर वार्म करंट्स. ठीक है, नियर इक्वेटर के पास क्या होंगे, वार्म करंट्स, बिकॉज नियर इक्वेटर देयर इज मोर हीट, एंड नियर द पोलर रीजन देयर आर कोल्ड करंट्स. ठीक है, सो व्हाट इज ओशन करंट्स, देयर आर द स्ट्रीम्स ऑफ वाटर. कि यहाँ पे अगर यहाँ पे डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स है, जैसे यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे अफ्रीका है, ठीक है, देन हियर इट इज इंडिया, यहाँ पे पूरा एशिया हो गया, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया. तो ये क्या है, वाटर इज मूविंग, वाटर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. ठीक है, यहाँ से इधर मूव कर रहा है, यहाँ से इधर मूव कर रहा है. ठीक है, ये कॉन्टिन्यूसली सर्कुलेशन में है वाटर, ये इधर से इधर मूव कर रहा है. ये क्या है, कॉन्टिन्यूसली वाटर, ये एक तरह की स्ट्रीम्स हैं जो ओशन में मूव कर रही है. कि पानी ओशन का स्टिल नहीं है, इट इज मूविंग. यहाँ पे इस साइड से इधर मूव कर रहा है, यहाँ से पोलर रीजन से इधर को मूव कर रहा है, इक्वेटर से इधर को मूव कर रहा है. ठीक है, ये कोल्ड करंट इधर को मूव कर रहा है, और किसी ना किसी एक पॉइंट पे दोनों करंट मिल भी रहे हैं आपस में. ठीक है, सो ओशियन करंट्स क्या है, दे आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर. ओशन वाटर में ही स्ट्रीम्स, स्ट्रीम्स मीन स्मॉल रिवर्स. ठीक है, जैसे एक रिवर अपने डायरेक्शन में चलती रहती है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती. ठीक है, इन द सेम वे इनकी भी एक फिक्स डायरेक्शन है, ये वाटर इसी डायरेक्शन में चलता रहता है. ठीक है, तो इसीलिए जो शिप्स वगैरह चलते हैं तो उनको भी बड़ा इजी हो जाता है कि ये वाटर इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो हम इस रास्ते से अगर हमने दूसरे कंट्री में शिप्स वाटर, ओशन वाटर का सी वेज यूज करना है, तो हम किस रास्ते से जाएंगे कि हम इजीली पहुंच जाएंगे. अगर वो इसी ओशन करंट के साइड साइड में जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे. अगर ओशन करंट इधर आ रहा है, शिप्स इधर जाएगा तो उन्हें ज्यादा फोर्स लगेगा. ठीक है, तो जिधर ओशन करंट है वो भी उधर को अपना शिप्स जो है वो ले जाते हैं. ठीक है, इसलिए सी रूट भी होते हैं. सी जैसे हम रोड ट्रांसपोर्ट हो गए, हमारी रोड्स बनी हुई है, रेलवेज बनी हुई है, वहां तो प्रॉपर हमारे पास विजिबल है. तो ये क्या है, ये भी सी रूट है कि हमने अगर सी से जाना है तो किस रास्ते से जाना है. ठीक है, तो जिधर स्ट्रीम जाती है उसी रास्ते से जाएंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा. सो ओशन करंट्स दे आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर कॉन्स्टेंटली ऑन ओशियन सरफेस, और ये कॉन्स्टेंटली एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है. कौन कौन से वर्ड याद रखनी है आपने, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग. ठीक है, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर भी है, कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग भी. ये नहीं कि एक सीजन में चलती है एक सीजन में रुक जाती है, नो, कॉन्स्टेंटली दे आर फ्लोइंग, कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग. एंड देन कहां पे फ्लो कर रही है, ऑन ओशियन सरफेस. ठीक है, ओशियन के सरफेस के ऊपर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर है, कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग है. कहां फ्लो कर रही है, ओशियन के सरफेस के ऊपर. ठीक है, देन इन डेफिनेट डायरेक्शन, उनकी एक डेफिनेट डायरेक्शन है. ये नहीं कि कभी इधर को मूव कर रही है कभी दूसरी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी. ठीक है, कॉन्स्टेंटली मूविंग है लेकिन एक डेफिनेट डायरेक्शन है. हमेशा अगर वाटर इधर से पोलर रीजन से इधर इक्वेटर की तरफ आ रहा है तो इधर ही आएगा, इधर इक्वेटर से इधर को जा रहा है तो इधर ही जाएगा. ठीक है, सो दिस इज डेफिनेट डायरेक्शन. इसी डेफिनेट डायरेक्शन में कॉन्स्टेंटली दे फ्लो ऑन ओशियन सरफेस. ओशियन करंट इज क्लियर. सो द ओशियन करंट मे बी वार्म और कोल्ड. अब ये जो ओशियन करंट है, ये ओशियन करंट क्या हो सकता है, मे बी वार्म एंड इट मे बी कोल्ड. ठीक है, तो दो तरह के करंट हो सकते हैं, इट मे बी वार्म एंड इट मे बी कोल्ड. सो कोल्ड करंट अब क्या होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है कि वार्म करंट और कोल्ड करंट क्या होगा, इनकी डेफिनेशंस क्या होंगी.
वार्म करंट्स ओरिजिनेट नियर इक्वेटर। तो वार्म करंट्स कहाँ ओरिजिनेट करते हैं? नियर इक्वेटर। यह इक्वेटर है, तो वार्म करंट्स की ओरिजिन कहाँ हो रहा है? नियर द इक्वेटर। तो वार्म करंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड्स द पोल्स। अब यहां से ओरिजिनेट होते हैं और किधर को मूव करना शुरू कर देते हैं? टुवर्ड्स द पोलर रीजन्स। ठीक है, इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ मूव करता है। एंड द कोल्ड करंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हायर लैटिट्यूड्स। ये जो कोल्ड करंट्स हैं ये पोलर रीजन से करते हैं कैरी कोल्ड वाटर, कैरी कोल्ड करंट्स एंड टू, और कहाँ मूव करते हैं? टू ट्रॉपिकल एरियाज। ये ट्रॉपिकल एरियाज हैं इक्वेटर के पास, तो यहां से ये ट्रॉपिकल एरिया की तरफ मूव करते हैं फ्रॉम पोल्स टू पोलर रीजन टू इक्वेटर। सो कोल्ड करंट्स मूव फ्रॉम पोलर रीजन टू इक्वेटर। ठीक है, यहां से ये इधर को मूव करेंगे, ये इधर को मूव कर रहा है। ठीक है, सो इन डेफिनेट डायरेक्शंस दे आर द ओशन वाटर इज फ्लोइंग। ठीक है, सो व्हाट आर कोल्ड करंट्स एंड वार्म करंट्स? क्लियर हो गया। जो वार्म करंट है ये कहां से कहां मूव करेगा? फ्रॉम इक्वेटर टू पोलर रीजन। ठीक है, इक्वेटर टू पोलर रीजन। और कोल्ड करंट कहां मूव करेगा? फ्रॉम पोलर, बोथ साउथ पोल नॉर्थ पोल रीजन। ठीक है, पोलर एरियाज टू ट्रॉपिकल एरियाज। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, उधर पोलर रीजन है, सेंटर में ट्रॉपिकल एरियाज है। फ्रॉम पोलर एरियाज टू ट्रॉपिकल एरियाज। क्लियर? वार्म करंट्स एंड कोल्ड करंट्स आर क्लियर। सो देन अब कुछ नेम्स हैं कि जो नेम है करंट के, जैसे लेब्राडोर करंट का नेम है, ये ओशियन करंट है, ये कोल्ड करंट है। अब लेब्राडोर करंट कहाँ ओरिजिनेट होता है? फ्रॉम दिस पोलर रीजन। इस पोलर रीजन से ये अटलांटिक ओशन में से आता है। ठीक है, अटलांटिक ओशन में ये करंट है लेब्राडोर, फ्रॉम द नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ठीक है, यहाँ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के पास लेब्राडोर करंट है, ये कोल्ड करंट है। वाइल द गल्फ स्ट्रीम, और जो गल्फ स्ट्रीम है वो यहाँ नॉर्थ अमेरिका, यहाँ इक्वेटर के पास से ओरिजिनेट होता है, तो ये वार्म करंट हो गया। जो यहाँ पे लेब्राडोर करंट है वो कोल्ड है, जो इक्वेटर के पास है वो गल्फ स्ट्रीम करंट, वो वार्म करंट है। ठीक है, सो ओशियन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशंस ऑफ एरिया। अब ये हमें पता है कि देयर इज ऑल्सो लोकल विंड्स। अब लोकल विंड्स भी होती हैं, ठीक है, और सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, ये भी हमें पता है। अगर सी का वाटर यहाँ पे गर्म होगा तो वो वहां के आसपास के लैंड एरिया के टेम्परेचर पे असर डालेगा। यहाँ पे सी वाटर अगर कोल्ड करंट्स हैं तो वो भी वहां के एरियाज के टेम्परेचर पे थोड़ा इफेक्ट डालेंगे। ठीक है, सो द ओशियन करंट इन्फ्लुएंस टेम्परेचर कंडीशंस आल्सो। तो ये जो ओशियन करंट्स हैं इनसे क्या फर्क होता है? इनसे उस एरिया की टेम्परेचर कंडीशंस पे भी इफेक्ट होता है। ठीक है, जो वहां के सी कोस्टल एरियाज हैं वहां के टेम्परेचर पे भी इसका, जो वहां के ओशियन में कोल्ड करंट है, वार्म करंट है, कैसा करंट है, वैसा टेम्परेचर वहां के एरियाज के पास भी हमें मिलेगा। सो द ओशियन करंट इट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशंस। वार्म करंट्स ब्रिंग वार्म टेम्परेचर। अगर वार्म करंट होगा तो वार्म टेम्परेचर वो लेके आएगा। ठीक है, इफ इट इज कोल्ड करंट देन there will be temperature will be cold. So the areas where warm and cold currents meet, और वो areas जहां पे वार्म करंट और कोल्ड करंट मिलते हैं। ठीक है, जैसे यहां से इक्वेटर से इधर जा रहा है करंट, पोलर रीजन से इधर आ रहा है, अब कहीं ना कहीं तो वो दोनों मिलेंगे। ठीक है, वो करंट पोलर रीजन से इक्वेटर की तरफ आ रहा है, ये इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ जा रहा है, तो वेयर बोथ करंट्स मीट, जहां पे दोनों करंट्स मीट होते हैं तो वो बहुत ही
बेस्ट प्लेस हो जाता है जहाँ पे हमें जो ओशन में एक वेजिटेशन होती है वो बहुत, क्योंकि वार्म ज्यादा कोल्ड वाटर, ठीक है, वहां पे भी फिशेस ज्यादा नहीं रह पाती, ज्यादा वार्म करंट से वहां पे भी फिशेस ज्यादा नहीं होती। लेकिन जहाँ पे ओशन में कोल्ड और वार्म करंट मिलते हैं वहां पे फिशेस बहुत होती है, वहां पे फिशेस को फूड भी अच्छा मिलता है और वहां पे उनको एक ठीक टेम्परेचर मिलता है जहां पे भी वो इजीली ग्रो कर सकती हैं, ठीक है। तो एरियाज वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट दे प्रोवाइड बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड की जो बेस्ट फिशिंग प्लेसेस हैं वो वहीं पे होते हैं जहां पे वार्म और कोल्ड करंट्स दोनों मिलते हैं, ठीक है। तो सीज अराउंड जापान, एक तो जो जापान के अराउंड सी है वहां पे, और ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, और जो नॉर्थ अमेरिका का ईस्टर्न कोस्ट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, और इधर जापान के पास, ये दोनों एरियाज जो हैं यहाँ पे बहुत अच्छी हमें फिशिंग ग्राउंड्स मिलती हैं, ठीक है, इस तरह के एग्जाम्पल हैं। और जहाँ पे वार्म करंट और कोल्ड करंट मिलते हैं, एक और चीज वहां पे क्या होती है, एरियाज वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट मीट दे ऑल्सो एक्सपीरियंस फॉगी वेदर, ठीक है, क्योंकि कोल्ड करंट और वार्म करंट जब दोनों मिल रहे हैं तो क्या हो जाता है, फॉगी वेदर, स्टीम। अब कई बार आप गर्म पानी करते हो, ठीक है, गर्म और ठंडे पानी को मिक्स करते हो तो कई बार थोड़ी सी स्टीम निकलती है, तो वहां पे भी ओशन वाटर में भी व्हेन बोथ दीज करंट्स मीट, तो वाटर जो ऊपर से इवेपोरेशन ज्यादा होती है वहां पे, तो वहां पे क्या होता है, एक फॉगी सी वेदर, क्योंकि कोल्ड भी साथ में करंट आ रहा है, इधर से कोल्ड वार्म करंट आ रहा है, इधर से कोल्ड करंट आ रहा है, ठीक है, तो वहां की जो टेम्परेचर ऊपर कैसा हो जाता है, फॉगी टेम्परेचर हो जाता है, तो वहां पे जो नेविगेशन है वो थोड़ी मुश्किल भी हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ओशन करंट्स। ओशन करंट्स आर क्लियर नाउ, व्हाट आर कोल्ड एंड व्हाट आर वार्म करंट्स, ठीक है। एनी डाउट फ्रॉम दीज ओशन सर्कुलेशन? यस बच्चे, so then we move to the questions if there is no doubt. Okay, so first question, what is precipitation? yes, हाँ जी गुनीत। सो अब प्रेसिपिटेशन को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आफ्टर द इवेपोरेशन और व्हेन देयर इज इवेपोरेशन ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, वाटर ड्यू टू द सन हीट, देन evaporation of water into water vapor, then water vapor, it cools down, it takes the form of clouds, it condenses and takes the form of clouds, and when these water vapor they became too heavy to float into the air, then it came down in the form of precipitation. So precipitation may be in the form of rain, maybe in the form of snow, or then स्नो स्लीट एक ही बात है, ठीक है, देन और हेल्स, तो ये चीजें डिफरेंट फॉर्म्स में व्हेन दीज ड्रॉपलेट्स ऑफ क्लाउड वाटर केम डाउन in different forms, so all these forms are called precipitation. So precipitation can be rain, precipitation can be snowfall, ठीक है, so all these are different forms of precipitation. So precipitation is clear. After condensation, when water comes down on earth, in which position? In the form of precipitation. So then, हाँ जी जानवी. Yes, ma'am. Yes, Janvi, you have raised your hand. मैम मैंने आंसर के लिए दिया था. Yes, so what is precipitation? The sun's heat vaporizes water into vapor. This vapor cools down and condenses to become clouds. This may then fall on the surface of earth in the form of rain, snow, or sleet. This phenomena of water falling back onto the surface of the earth in the form of rain,
snow or sleet is called precipitation. Correct. ठीक है. So now the next question, what is water cycle? Yes, beta. Yes. Anyone else? Hanji, Drishti. Yes, ma'am. The process by which water continuously changes its form and circulates between oceans, atmosphere, and land is known as the water cycle. Yes. So process by which water continuously change its position. ठीक है. It circulates. कहाँ पे circulate करता है? From ocean to atmosphere, then again from atmosphere to land, and then from land to again oceans. So this is known as water cycle. Okay, so now next question. What are the factors that affect the height of waves? Hanji beta. Yes, very good. So you can also write in points the factors which affect the height of waves. First, the winds, okay? Winds, then storm, earthquake, volcanic eruption, underwater landslide. The stronger the wind blows, the bigger the wave becomes. Then, or earthquake, volcanic eruption, even they can shift large amount of water, okay, causing a huge tidal wave. So these are various factors. Hanji, Akshita, repeat the answer. Yes, ma'am. Yes, same. Factors affecting the height. Temperature, winds, earthquakes, volcanic eruption, or underwater landslides are the factors affecting the height of the wave. Yes. So these are different factors. So you can also write that the stronger the wind, the bigger the wave will be. And then which factors affect the movement of ocean water? Which factors affect the movement of ocean water? Hanji beta. Tides, waves and current. हमने क्या किया? ये दिस इज द ओशन सर्कुलेशन, ओशन वाटर की मूवमेंट ही तो की है हमने. दिस इज द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, 3 different forms. ठीक है. So factors affecting the movement of ocean water, they are waves, tides and ocean currents. So in brief this, अगर ये आपको क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो देन यू कैन एक्सप्लेन द पॉइंट्स, व्हाट आर द मीनिंग्स, है ना, तो वो आप मूव कर सकते हो इसमें. हाँ जी अर्पिता, सेम. Factors affecting the movement of ocean water. Yes, Arpita, your voice is not coming. Ma'am? Yes, now it's coming. Temperature, earthquake or volcanic eruption, gravitational pull of the sun and the moon, underwater landslides. So this is the answer of which question? Ma'am, fourth. Repeat the question. Which factors affect the movement of the ocean water? So the answer you have told, this is the answer of third question. Factors affecting the height of waves. ठीक है? So factors affecting the movement of ocean water. उसमें भी वैसे हम लिख सकते हैं कि movement
कौन सी है, उसमें भी फैक्टर्स वही लिख सकते हैं कि वाटर क्यों मूवमेंट कर रहा है, टेम्परेचर की वजह से भी मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। वेव्स, ओशन करंट्स भी लिख सकते हैं, और उसमें ये डिफरेंट अंडर वाटर लैंडस्लाइड, यस, ये सारे आप लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि हम वेव्स के लिए भी वही कर रहे हैं, ठीक है। अगर टाइड्स आ रहा है, टाइड्स के लिए ग्रेविटेशनल पुल भी है, तो आप उसमें वो भी लिखोगे। ओशियन के लिए इक्वेटर और पोलर रीजन की पोजीशंस भी है, टेम्परेचर हो गया, इंसुलेशन हो गया, तो डिफरेंट वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। ओशियन करंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल है, टेम्परेचर इज ड्यू टू द इंसुलेशन ऑफ सन। और टाइड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय सन एंड मून। वेव्स के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, डिफरेंट फैक्टर्स हमने अभी थर्ड क्वेश्चन में किए, तो वो सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो, फैक्टर्स अफेक्टिंग द मूवमेंट ऑफ ओशन, ठीक है। आप उसमें इस तरह पॉइंट्स बना के आगे भी लिख सकते हो, ठीक है, कि वेव्स इस वजह से हो सकती हैं, टाइड्स के लिए ये फोर्स काम कर रहा है, ओशन करंट के लिए ये फोर्स काम कर रहा है, इस तरह भी पॉइंट्स बना सकते हो। क्लियर कि these are the various movements and these are the causes of movements in ocean water, ठीक है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन बेटा? What are the factors affecting the movement of ocean water, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। टेम्परेचर भी, ग्रेविटेशनल फोर्स भी, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, लैंडस्लाइड भी, और टेम्परेचर भी, विंड्स भी इसमें आ गई, ठीक है। क्लियर? कुछ लेफ्ट तो नहीं, राइट हो तो नहीं गया इसमें से? Okay, so now the next question, what are tides and how they are caused? हाँ जी, yes, so पहले हम बताएंगे what are tides। तो सबसे पहले rhythmic rise and fall in ocean water twice a day, that is tide, and how they are caused, the strong gravitational pull exerted by sun and moon, they cause the, or that is the reason of these tides, or they cause tides, ठीक है। yes, हाँ जी रिव्या, repeat the answer. Yes, ma'am. The rhythmic rise and fall of the ocean water twice in a day is called as tide. They are caused by gravitational force exerted by the sun and the moon on the surface of Earth. Okay, good. So now next question, what are ocean currents? Yes, Guneet. Yes. So what are ocean currents? हाँ जी, अर्पिता. yes ma'am. Ocean currents are streams of water flowing consistently on the ocean surface in definite directions. Yes. So ocean currents. हाँ जी, what are ocean currents? What are ocean currents? अभी हमने किया ocean currents. What are ocean currents? क्या है ocean currents? Yes, Akshita, repeat the answer. Listen and you will speak again. हाँ जी, Akshita, repeat the answer. Yes, ma'am. Ma'am, ocean currents are streams of water flowing constantly on the ocean in definite directions. Yes, now. In a definite direction. Definite direction का मतलब? Definite direction का मतलब?
ओशियन करंट्स, डेफिनेट डायरेक्शन का मतलब क्या है? Yes, so what are ocean currents? They are streams of water. वाटर की रिवर्स हैं, ओशियंस में ही कॉन्स्टेंटली फ्लो कर रही हैं, एक ही डायरेक्शन में, उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, अलग अलग इक्वेटर से पोल्स की तरफ, पोल से इक्वेटर की तरफ एक डेफिनेट डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में वो कॉन्स्टेंटली फ्लो कर रही हैं ऑन ओशियन सरफेस. ओशियन का जो डिफरेंट ओशियंस हैं, उन्हीं ओशियन सरफेस के ऊपर फ्लो कर रही हैं डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ वाटर. जैसे नदी बहती है तो वैसे एज लाइक स्ट्रीम्स ऑफ वाटर दे आर कॉन्स्टेंटली flowing. ठीक है, so there are also warm currents and cold currents. Okay, so now the yes next give reasons वाले question ये हम कल करेंगे. Okay, so next question please repeat the answer. Yes, हाँ जी, अक्षिता. Ocean currents. Yes, ma'am. हाँ जी. Ma'am, which question? Ocean currents. Okay, ma'am. Oh, ma'am, definition of ocean currents. Ocean currents are streams of water flowing constantly on the ocean surface. Yes, they are streams of water constantly flowing on the ocean surface in definite direction. Okay, so we will continue this discussion on these questions. Go through the topic and write the questions in your notebook.